Good morning, students. Today we are going to learn Unit 4 Garden of Words. In this lesson, we are going to learn some words which are going to come in the next lesson. अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमको दिए हैं जो आगे आने वाले लेसन में हमको आने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड दिस वर्ड्स. Always, before, better, bought, butter, by, carrying, churn, creamy, does. Dream, dreaming, even, ever, flew, from, gently, get, golden, held. High, just, no, lost, make, market, milk, money, moved, and much. Nice, past, people, pot, price, rich, rolled, sell, should, show. Soft, spilled, surprise, tasty, thick, toss, tossed, wet, wear, and your. So these are the words which are going to come in next lesson. Next हमको देखना है first question. So the first question is listen carefully and tick off the words in your table. So I am going to read some words which are given in this garden of words. You have to tick these words into your table or write down that words in your notebook. So first word is always, churn, dreaming, gently, market, nice, price, should, soft, surprise, and toss. So for example I am going to read this word always. अगर मैंने always पढ़ा तो what you have to do is you have to tick always in this table or in this garden of words. So always को आपको tick करना है और you have to write that in your notebook. So these are the words. For example this is churn. So find the word in the table. So here is third one from the bottom of this column. Third one, churn. Next, dreaming. So this is dreaming. So like that you have to find these words in this table and you have to tick off. Next you have to do is find words that end with. So here are this much words. So you have to find the words which ends with ing, which ends with ing. For example in this lesson in this column this is carrying, carry ing. So this letter this word is ending with ing. So you have to find such words in this garden of words. How many words are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So there are five columns, so there are 50 words. So in these 50 words you have to find the words which ends with ing. For example I gave some words and you have to find the words that end with d also. Next सी ing वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ing वर्ड्स यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दिए हैं. फर्स्ट वन इज कैरिंग. देखो यहाँ पे हो गया कैरिंग. द नेक्स्ट वन इज ड्रीमिंग. और कोई ऐसा शब्द हमको इस 50 वर्ड्स में हमको नहीं दिखाई दे रहा है. सो आई रोड दिस टू वर्ड्स कैरिंग एंड ड्रीमिंग. सो दीज वर्ड्स एंड्स विथ ing. सो देखो इसके भी अंत में ing आ रहा है, इसके भी अंत में ing आ रहा है. देन डी वर्ड्स. सो डी वर्ड्स कौन से है? देखो पहला यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमको एक भी नहीं मिला. दूसरे इसमें देखा नहीं मिला. हाँ दूसरे इसमें लास्ट वन है हेल्ड. देन मूव्ड. मूव्ड देखो कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे मूव्ड नीचे सेकंड लास्ट. देन रोल्ड. रोल्ड ये है रोल्ड. देन नीचे शुड, उसी के नीचे शुड. देन स्पिल्ड. स्पिल्ड. देन tossed. So these are the words that end with D. ये इनका जो अंत होता है वो D से होता है. So you have to find the words like this. Then we are going to learn the next question. You can use some of the words to give an order. अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनका उपयोग हम लोग ऑर्डर देने के लिए करते हैं. फाइंड एटलीस्ट 3 ऑफ देम. तो जैसे यहाँ पे हमको एक दिया है बाय. बाय माने खरीदो.
हम लोग आदेश देने के लिए भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसे कौन से और वर्ड्स है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लू। फ्लू फ्लू माने उड़ जाओ। अगर हम लोग किसी पंछी को लिया और ऐसे बोला चलो उड़ जाओ, हाँ, या किसी एरोप्लेन को हम लोग या किसी को भी हम लोग आदेश दे सकते हैं। गेट गेट माने प्राप्त करो, ये भी एक प्रकार का आदेश हो सकता है। हेल्थ यानी इसको पकड़ो। देन मेक बनाओ, सेल बेचो, शो दिखाओ, वेट माने रुको, वियर माने पहनो। सो दीज आर सम वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड टू गिव एन ऑर्डर। ये सारे शब्द है जो हम लोग इस गार्डन ऑफ वर्ड्स में हमको दिए हैं, जो हम लोग ऑर्डर देने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स इन दीज वर्ड्स। अभी आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स देंगे हम लोग नीचे। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स गिवन हियर, डज, कौन सा दिया है? डज। तो इसमें हमको इसी में छोटे शब्द ढूंढना है, हमको इसका क्रम बदलना नहीं है। वी डोंट हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस लेटर्स, बट यू हैव टू फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स। सो डीओ डू, सो यहाँ पे एक वर्ड आया डीओ डू। अब दूसरा है, जैसे ये है क्रीमी, सो देखो CREAM, क्रीम हो गया। AM एम यानी MY माई। सो आई फाउंड 3 words in this bigger word. Then next कैरिंग। सो कैरिंग में देखो CAR कार, CARRY कैरी। कैरी माने क्या होता है? साथ ले जाना। सो दीज आर द वर्ड्स। देन गोल्डन, सो गोल्ड, ओल्ड एंड देन, दीज आर 3 words. So like this you have to do and find it out. Then use the letters in the words to make other words. Now अभी देखो दोनों में अंतर क्या था। अब ये देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ड्रीमिंग, मार्केट एंड सरप्राइज, और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बॉट। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट नहीं करना है, हमको क्या करना है? मेक अदर वर्ड्स, हमको दूसरे शब्द बनाने हैं। जब दूसरे शब्द बनाने हैं सो वी कैन यूज दिस लेटर्स। अब जैसे BOUGHT कितने लेटर्स है? देयर आर 6 लेटर्स। सो वी कैन यूज दिस 6 लेटर्स टू मेक डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने पहला B लिया, दूसरा U और T, BUT बट हो गया, फिर H लिया, HUT हट हो गया। सो आई एम चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स टू मेक न्यू वर्ड्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? अगर ऐसा सवाल आता है यूज द लेटर्स, आपको लेटर्स यूज करने के लिए बोला है, नॉट टू फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स। तो अगर आपको यूज द लेटर्स बोला है तो आप इनका जो लेटर्स का क्रम है उसको चेंज करके नए वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BUT बट, HUT हट, HOT हॉट, TUB टब, और ऐसे आपको बहुत सारे शब्द आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे यहाँ पे ड्रीमिंग दिया है, सो ड्रीमिंग से तो पहला शब्द ड्रीम बन गया, हमारा है ऑलरेडी। दूसरा ARE, देखो अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, ARE, आर 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 मतलब है, देन यमी मी, देन NAME नेम। सो लाइक दिस यू हैव टू मेक। देन द वर्ड इज मार्केट। सो मार्केट में MAR के मार्क तो है ही है वहाँ पे दिया। नेक्स्ट इज TERM, टर्म। टर्म माने होता है ATE, एट माने खाया, टर्म माने होता है उसका क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म आता है या पक्ष। देन सरप्राइज। सरप्राइज में देखो IS इज, RISE राइज, ऐसे और भी कई सारे शब्द है जो आप लोग ढूंढ सकते हैं। सो लाइक दिस यू हैव टू लर्न द वर्ड्स फ्रॉम दिस गार्डन ऑफ वर्ड्स. You have to solve all this question in your notebook. Thank you.